अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ अबाउट द एडजेक्टिव्स एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एडजेक्टिव. Adjective is a word which adds something in the meaning of noun or pronoun. Or adjective is a describing word. We can also say that adjective is a modifying or qualifying word, because adjective most of the time show the quality and the quantity of noun or pronoun. So there are the three definitions. They give us the same ideas of the adjective, like adjective is describing, modifying and qualifying word, or add something in the meaning of noun or pronoun, or show the quality or quantity of noun or pronoun. Adjective हमें क्या बताता है? Adjective वो word है जो हमें noun और pronoun की मीनिंग के अंदर कुछ ज़्यादा क्लियरिफिकेशन लेके बताता है और उसकी मीनिंग को कुछ ज़्यादा मॉडिफाई करता है, कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करता है. फिर वी कैन अंडरस्टैंड नाउन और प्रोनाउन वेरी क्लियरली, राइट? तो most of the time adjective used with a noun. See, in this sentence, first of all we talked that adjective is a describing word. How it is described? Karachi is a large city. Now here we know that Karachi is a city, but we are talking, we are adding adjective. We are adding one adjective that is describing the city Karachi, right? Adjective is describing that the city Karachi is large. The city Karachi is large. So it means now add something. Another definition was add something in the meaning of noun or pronoun. Now the city is a noun, right? In this noun, this adjective is adding some more meaning, or clarifying this word city, or beautifying more to this city, right? First of all, we talked city. Then we know all are the city, but when we talked about the Karachi and we add this word large, then we come to know very clearly that Karachi is a large city, right? So in this way, she is a happy woman. We know that she is a woman, but here we add the word happy. Happy is describing more to the woman. He is adding something in the meaning of this noun. That's why we say that adjective is a word which adds something in the meaning of noun. In the meaning of noun, right? Shah Hussain is an honest boy. We know that Shah Hussain is a boy, but here we added the word honest, which describe more to the boy, honest, right? So adjective is a word which show the quality or quantity of noun or pronoun. क्या शो करता है? या तो उसकी क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की. तो ये जो हमने तीन बातें की, लार्ज, हैप्पी और ऑनेस्ट, ये क्या थी? क्वालिटी बता रहे थे. हम लोग सिटी की क्वालिटी बता रहे थे, वुमन की क्वालिटी, यहाँ पे बॉय की क्वालिटी बता रहे थे. अली इज ए ब्रेव बॉय, अली इज ए ब्रेव, तो अली की भी हम लोग क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं. तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट? तो गुड, he is good person, he is intelligent student. अब स्टूडेंट तो है लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, राइट? तो इस तरह जो वर्ड वो नाउन की मीनिंग के अंदर कुछ न कुछ ऐड करें तो उनको हम बोलेंगे ये हमारे क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव है, राइट? तो उनको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताते हैं, राइट? एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे ये दो सेंटेंस है. देखो, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय इज लेजी. ये दो सेंटेंसेस है. अब देखो इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, यहाँ पे ये जो लेजी बॉय है, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या यूज किया? एट्रीब्यूटिवली यूज किया. एट्रीब्यूटिवली का क्या मतलब था? हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के अंदर, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा था सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ड. तो सब्जेक्ट वर्ड एंड एट्रीब्यूट, यहाँ पे इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड, राइट? तो यहाँ पे जब भी हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके साथ साथ हम नाउन जरूर यूज करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? नाउन. वी यूज एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, मस्ट, राइट? So keep in mind, we use it attributively. We will not use as a predictively, right?
predicatively, right? So the boy is a lazy. अब यहाँ पे जो lazy हुआ यूज हुआ वो verb के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ? वर्ब के साथ हुआ। तो हम लोगों ने प्रीडिकेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट या वर्ब जिस पार्ट के अंदर होते हैं उसको हम प्रीडिकेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीडिकेटिवली हम यूज नहीं करेंगे हमारे इसको एडजेक्टिव को। जब भी हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग करेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे। तो कीप इन माइंड, जब भी एडजेक्टिव यूज करो तो उसके साथ नाउन ऐड करना है। नाउन के साथ ही एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे, क्योंकि वो नाउन की ही मीनिंग को कुछ ज़्यादा क्लेरिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, राइट? तो इस तरह आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कि हमारा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव के अंदर हमने दो बातें की, यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी की। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहाँ देखो क्वालिटी जो है, क्वालिटी कैन बी पॉजिटिव, क्वालिटी कैन बी नेगेटिव, राइट? देखो क्वालिटी कैन बी पॉजिटिव, क्वालिटी कैन बी नेगेटिव। ही इज गुड बॉय and he is bad boy. He is bad boy. So these both are the qualities. These both are the qualities, right? Intelligent and dull. These both are the qualities, right? When we are talking about quality, that quality can be positive or quality can be negative. Quantity means amount. How much it mean, right? Some little, 10% to 5, enough, few. These are the quantity adjectives. These are the quantity adjective and these are the qualities adjective. These are quantity adjective we will discuss in. Let's start the adjective of quantity. Adjective of quantity are those adjectives which shows the quantity of a noun or pronoun, or which shows that how much of things is made. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो एडजेक्टिव हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वांटिटी बताएं, कोई मेजरमेंट बताएं, राइट? जिस तरह यहाँ पे सम, एनी, ऑल, होल, इनफ, ये जो है ये हमें क्वांटिटी बता दें। ये इस सम की या हमारे नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वांटिटी बता दें कि ये इस तरह। अज्यूम करके आई एड सम राइस, आई एड सम राइस, आई एड राइस, I ate some rice. I don't know how much quantity of rice I ate. लेकिन जब मैं ये mention करता हूँ कि I ate some rice, then I come to know that I have eaten some rice, right? So it means here I am going to show the quantity. Quantity of what? Quantity of noun. She has no sense. She has no sense. Sense when she has sense. But when we say no sense, then we come to know that she has, we know the quantity of the sense. It means she has no sense, right? Or we can say that here now we discuss the difference between a little and the little. Here we few and the few, right? These are what? These are all the adjective of quantity which shows the quantity of noun or pronoun. But there is a difference that the little and few. Little is mostly used for uncountable nouns. However, few is mostly used for countable nouns. Few is mostly used for countable nouns. However, little is used for uncountable nouns. See the word little, a little and the little. There is a difference. There is a difference between these three words, right? First of all, the little. When we simply say little, then we mean that it is about negligible. It's very nearly to zero. It's nearly to zero. 100 means only 2%. 100 means only 2%. When we say little, I have a little hope. I have a little hope. It means from 100, I am only hopeful of only 2%. So little hope means a 2% hope from out of 100. It's very little, negligible, near to very zero. When we say I have a little hope means I am very much optimistic about this thing. Okay, there will be something. When we say a little hope, then there can be 50% chances or 30% chances. I mean, I have little bit of hope in this way, right? When we say the little hope
हम तब यूज़ करते हैं जब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं हमें जितनी भी उम्मीद है, लेकिन वो हमें श्योरिटी है कि ये उम्मीद मेरी सही है, ये उम्मीद मेरी सही है। लेट्स सपोज मैं कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, लिटिल कॉन्फिडेंस, ही हैज़ ही हैज़ ही हैज़ लिटिल कॉन्फिडेंस। इसके बाद बहुत ही कम कॉन्फिडेंस, he has a little confidence, he has a little confidence. A little confidence, it means that he can prove himself, he can prove himself, right? So 50%. When we say the little confidence he possesses, the little confidence he possesses. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, the little confidence which he possesses has no parallel. जो इसके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है उसका कोई पैरेलल नहीं है, राइट? तो लिटिल कॉन्फिडेंस, जब द लिटिल की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर कर रहे हैं, वो जितना भी है, लेकिन उसकी हम द लिटिल नॉलेज विच ही पॉजेस, द लिटिल नॉलेज विच ही पॉजेस एज is very amazing, is very amazing. The little knowledge which he possesses, the little knowledge, the little knowledge, the little knowledge which he possesses as is amazing, is the little knowledge which he possesses, राइट? तो इस तरह लिटिल, द लिटिल को हम इस तरह जब पर्टिकुलर सेंस में बात करें तो अब हम द लिटिल यूज़ करेंगे, राइट? लिटिल का मतलब निग्लेजिबल और नियरली टू जीरो, अ लिटिल का मतलब समहाउ एंड द लिटिल इन ए पर्टिकुलर सेंस. So the case with these few, a few and the few. Few means very nearly to zero, और बहुत ही कम, negligible, or only we can say the 2% or 5%, right? जब we when we say a few, then we are going to say 50% or somehow, and a few, the few mean in a particular sense. Few, a few, the few are used for countable nouns. Countable nouns, we know that those nouns which we can count, such as friends, such as officers, such as visitors, right? Here we were talking about uncountable nouns, like the hope, like the knowledge, like the food, like in this sense we were talking about the uncountable nouns, and here we are talking about the countable nouns, right? So I have few friends. I have few friends means only two or three. Few friends. I have a few friends. I mean I have more than 50, more than 100 friends, right? The few friends which I have, the few friends which I have, those are very interesting. Those are very interesting, right? So the few friends which I have, those are interesting. So in this sense, we can use the few and the few, right? So this is the little bit difference between these six levels. In this video, I am going to talk about the difference between some and any. Also, the difference between the someone, somebody, something, anybody, anyone, anything. In this video, we are going to talk about the differences between these adjectives, right? So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं. जहाँ एनी की नीड होती है वहाँ वो सम लगा देते हैं, जहाँ सम की नीड होती है वहाँ वो एनी पुट कर देते हैं, या इनका इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं. तो बी वेरी मच विजिलेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड एनी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड सम. Sum is used in those sentences which are positive or which are assertive, which are declarative. It means उस सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उनके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे सम का यूज़ करेंगे, राइट? तो देखो, अब देखो जहाँ सम यूज़ होगा वहाँ हम somebody और someone और something, उनका भी वही यूज़ होगा. someone, somebody, something, इनको भी हम किस सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, या असर्टिव सेंटेंस के अंदर, या डिक्लेरेटिव, राइट? वही उसको एक ही नाम है, पॉजिटिव कहें, डिक्लेरेटिव कहें, असर्टिव कहें, सही स्टेटमेंट सेंटेंस क्या भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होंगे. तो जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे. जिस तरह वी बॉट सम फ्लावर्स. अब वी बॉट सम फ्लावर्स, ये क्या है, एक सादा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है,
तो इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या यूज़ किया, सम यूज़ किया, राइट। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, ये भी कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या यूज़ किया, समथिंग यूज़ किया। क्या यूज़ किया, समथिंग। आई एम वेटिंग फॉर समवन, आई एम वेटिंग फॉर समवन, तो यहाँ पे यूज़ किया क्या मैंने, समवन यूज़ किया, आई एम वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ पे भी मेरा सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, आई एम वेटिंग फॉर समवन। तो समवन, समबडी, समथिंग एंड सम हम उस सेंटेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो सेंटेंसेस क्या हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, राइट। अब आते हैं हम एनी पे, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग हम उन सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं जो सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। वो क्या सेंटेंसेस हो, या तो नेगेटिव हो, या वो सेंस जो दें, या वो मीनिंग को दें, उसकी जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस के अंदर हो। उनमें हम क्या लगाएंगे, उनमें हम सम का यूज नहीं करेंगे, उनमें हम एनी का यूज करेंगे। जिस तरह वी डोंट बाय एनी फ्लावर, वी डोंट बाय, यहाँ पे क्या था, वी बॉट सम फ्लावर, यहाँ पे हमने कहा वी डोंट बाय एनी फ्लावर, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव, तो उस वजह से हमने क्या यूज किया, एनी यूज किया, राइट। ही रिफ्यूज टू ईट समथिंग, ही रिफ्यूज टू ईट, यहाँ पे देखो सेंस, सेंटेंस का जो सेंस बन गया वो नेगेटिव सेंस बन गया। हमने कहा हम एनी वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ जो सेंस मिले वो नेगेटिव सेंस हो, तो इस सेंटेंस का जो सेंस बना वो नेगेटिव बना, उस वजह से हमने क्या यूज किया, ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, राइट, या he don't eat anything, he don't eat anything, right। तो यहाँ पे जहाँ पे भी नेगेटिव सेंस हो या नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर हम एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग या एनी का यूज करेंगे, राइट। ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा फर्स्ट रूल था। और सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि सम एंड एनी जो दोनों हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दोनों यूज हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब वो जिस चीज़ की वो हम बात करें उसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो तो हम यूज करेंगे एनी, और जब कोई इनको एग्जिस्टेंस हो तो हम यूज करेंगे सम। देखो, डू यू हैव एनी वर्क, डू यू हैव एनी वर्क, अब यहाँ पे सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं क्या उसकी एग्जिस्टेंस है। हम यहाँ पे बात करें वर्क की, वर्क की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वर्क को हम फील करते हैं, वर्क को क्या करते हैं, फील करते हैं, राइट। तो यहाँ जहाँ पे क्लियरली एग्जिस्टेंस ना हो तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम एनी का यूज़ करेंगे। जिस तरह डू यू हैव एनी लैंग्वेज, डू यू हैव एनी लैंग्वेज, अब लैंग्वेज को क्या करते हैं, लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक हम महसूस करते हैं, कोई बंदे बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम ये महसूस करेंगे ये कोई न कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इस तरह हम कहेंगे डू यू हैव एनी लैंग्वेज या डू यू हैव एनी वर्क, जब के कोई चीज़ की नो एग्जिस्टेंस हो। जब एग्जिस्टेंस होगी तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सम यूज़ करें। कैन आई हैव सम शुगर, कैन आई हैव सम शुगर, यहाँ पे मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उस वजह से मैंने कहा सम, उस वजह से मैंने क्या यूज किया, सम। कैन आई हैव सम शुगर, या आर यू वेटिंग फॉर समवन, आर यू वेटिंग फॉर समवन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन समवन की बात कर रहा हूँ। समवन क्या है, समवन कोई स्टूडेंट होगा, कोई बॉय होगा, कोई फ्रेंड होगा, समवन होगा, तो समवन वो क्या पर्सन होगा, पर्सन की एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे आर यू वेटिंग फॉर समवन इंट्रोगेटिव सेंस है लेकिन उसके अंदर एग्जिस्टेंस भी है, तो उस वजह से मैंने क्या यूज किया, समवन यूज किया। तो कीप इन माइंड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो और उसके अंदर नो एग्जिस्टेंस हो तो एनी का यूज करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसके अंदर एग्जिस्टेंस हो तो हम सम का यूज करेंगे, या समवन या समबडी या समथिंग का यूज करेंगे उस सेंटेंस के अंदर, राइट। उसके अलावा जो थर्ड रूल है एनी का वो है ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर इफ कंडीशन हो उस सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे, उस सेंटेंस के अंदर एनी का यूज करेंगे। लाइक लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, यहाँ पे देखो लेट मी नो इफ वाली कंडीशन आ गई, तो जब इफ वाली कंडीशन आ गई तो हमने क्या यूज किया, एनीथिंग, क्या यूज किया, एनीथिंग। if you have any question, you are welcome,
यहाँ पे इफ वाली कंडीशन आई तो मैंने कहा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो इस तरह मैंने कहा कि जब हम क्वेश्चन पे हो या इफ वाली कंडीशन, जिस सेंटेंस के अंदर इफ वाली कंडीशन होगी उस सेंटेंस के अंदर अगर हमें यहाँ पे एनीबडी और एनीथिंग का यूज़ करना होगा तो हम ये एनी वाली सीरीज लेंगे, या एनी लेंगे या एनीबडी लेंगे या एनीथिंग लेंगे या एनीवन लेंगे, राइट। आई होप आप लोगों ने इसका डिफरेंसेस समझ लिया होगा। In this video, I will talk about demonstrative and distributive adjectives, as well as I will define the difference between each and every in this video. So the distributive and demonstrative adjectives are mostly similar to the distributive and demonstrative pronouns, but there is a little bit difference. So we put light on these both distributive and demonstrative adjectives. So demonstrative pronouns are those pronouns which point out anything or to identify anything. This, that, these, those. Only this is included, that is such, right? This, that, these, those. This and that are the singular, and these, those, and such. These three are the plural, right? So here distributive, each, either, neither, every. All are the singulars. All are the singular. These all are the singular distributive adjectives. However, in this and that are the singular, and these, those, such are the plural, right? We have to keep in mind that these all are the adjectives, so we have to use them attributively. Attributively I mean ke along with the noun, before the noun we have to use them. In this way, this book, अब यहाँ पे ये जो बुक है ये नाउन है, और यहाँ पे जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया हमने। आर्टिकल को किस तरह, यहाँ पे एडजेक्टिव को किस तरह यूज़ किया, एट्रीब्यूटिवली, राइट। तो हमें पता था, ये हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था। एट्रीब्यूट क्या होता है, माई फादर जो है, अब इसके अंदर ये जो माई है ये एट्रीब्यूट है, और ये जो फादर है ये सब्जेक्ट वर्ड है। तो इसी तरह ये देखो, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। इसी तरह हमें सारे जो भी हमारे ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम लोगों को किस तरह यूज़ करना है, एट्रीब्यूटिवली यूज़ करना है। जिस तरह हमने इधर यूज़ किया, दिस बुक, दीज पिक्चर्स, राइट। दिस सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, और यहाँ पे दीज जो है प्लूरल है तो हमने वर्ब भी कौन सा लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, राइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे यूज जो करना है वो एट्रीब्यूटिवली यूज करना है। उसके बाद सच पर्सन, सच हमारा पता है सच भी क्या है, प्लूरल है, तो इसका वो भी प्लूरल लगेगा। सच पर्सन्स आर फेथफुल, अब हम बात करते हैं इधर नीदर की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी का डिफरेंस। इधर एंड इधर बर्ड विल फ्लाई, राइट। अब इधर बर्ड, ये देखो, इसको भी हमने एट्रीब्यूटिवली किया, इसको भी एट्रीब्यूटिवली, राइट। उसके बाद हमें क्या फोकस, क्या चीज़ करनी है, फोकस ये करना है कि नीदर के साथ नॉट नहीं लगेगा, तो हमने नहीं लगाया, राइट। और दूसरा क्या है, दूसरा हमें पता है कि इधर बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स नहीं लगाना, यहाँ सिंगुलर नाउन लगाना। क्या लगाना है, सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी यहाँ भी सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर आएगा। नीदर फिल्म, नीदर ऑफिसर और इधर बर्ड, यहाँ हमें पता है ये तीनों ही सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इधर नीदर या इधर के साथ जो वर्ब नाउन लगाना है वो नाउन सिंगुलर लगाना है, वो नाउन कौन सा लगाना है, सिंगुलर। और वर्ब ऑटोमेटिकली पता है कि ये सिंगुलर है, तो वो भी कौन सा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ईच और एवरी की, ईच एंड एवरी की। अब देखो, ईच एंड एवरी का फर्क, छोटा सा फर्क है। जो ईच जो है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जिस ग्रुप की बात करें वो ग्रुप के नंबर हो वो स्मॉल नंबर हो, उस ग्रुप के अंदर थोड़े से ही बंदे हो, या वो जो बात करें वो स्मॉल नंबर में हो, या एक बंदे की बात सेपरेटली बात करें। किसकी बात करें, सेपरेटली या इंडिविजुअली हम बात करें, या किसी ग्रुप के अंदर जो नंबर हो वो डिफाइंड नंबर हो, या राइट। सी
स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। अब सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, जब पेपर देते हैं ना, पेपर के ऊपर नोट में दिया होता है कि स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। अब वहाँ जो सेंटेंस दिए होते हैं वो भी कुछ ही थोड़े ही होते हैं, तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया, ईच यूज़ किया। ईच तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो या नंबर ऑफ ग्रुप के अंदर जितने नंबर्स हैं वो हम काउंटेबल हो, हम उसकी काउंट कर सकें, राइट, डिफाइन हो। ईच प्लेयर ट्राइड हिज बेस्ट, ईच प्लेयर ट्राइड हिज बेस्ट। अब देखो प्लेयर की बात हो रही है, तो प्लेयर्स एटलीस्ट कितने होंगे क्रिकेट के अंदर, 12 होंगे, राइट, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ईच प्लेयर ट्राइड हिज बेस्ट, तो वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, ईच यूज़ किया, यहाँ पे भी ईच यूज़ किया, राइट। अब यहाँ पे 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, ऑन ईच बैच। अब बैच कितने, 5 स्टूडेंट थे, तो बैचेस भी कितने थे, 5 थी। तो यहाँ पे एज की प्लेस पे हम एवरी नहीं पुट करेंगे, यहाँ 5 बॉयज वर सीटेड ऑन एवरी बैच। एवरी बैच में एवरी तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो नंबर ऑफ बैचेस हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, हम काउंट ही ना कर सकें, तब हम यूज़ करेंगे एवरी बैच, राइट। तो डिफरेंस छोटा सा यही है कि ईच हम तब यूज़ करें जब स्मॉल नंबर हो, और हम एवरी तब यूज़ करेंगे जब लार्ज नंबर हो। देखो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब, ये कितना कॉमन है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव वर्ब, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब तो होगा ही होगा। तो ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी सेंटेंस, बहुत सारे बुक्स हैं, उन बुक्स सारों को ओपन करके देखें, हम देखेंगे तो ये हमें वो मिलेगा उन सेंटेंस के अंदर। तो हमने कहा कि एवरी, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ किया, हमने एवरी यूज़ किया। यहाँ भी सेंटेंस की बात कर रहे थे पर लेकिन वर्ड क्या यूज़ कर रहे थे, ईच। क्यों, वहाँ पे पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, डेफिनेट और हमने सेंटेंस की बात कर रहे थे, कुछ बहुत ही कम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ जनरल बात कर रहे हैं, राइट। तो एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू, यहाँ पे थिंग्स की बात कर रहे हैं, हर कोई चीज़, राइट, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू, हर किसी चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत ही जनरल चले गए, या ग्रुप की बात कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल नंबर की बात कर रहे हैं। जब स्मॉल की बात कर रहे हैं तब ईच लगाएंगे, जब लार्ज की ज़्यादा की बात करेंगे तो हम एवरी लगाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं डिफरेंट इंटीरियर्स के अंदर। हम ये देखेंगे कि कहाँ गलती हो सकती है, या कहाँ किस में से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है और कैसे क्वेश्चन अपीयर हो सकता है इस एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में से, राइट। तो सिंपल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब यही है कि स्टेप्स, हम पता है एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन आफ्टर नाउन। अब हम देखेंगे जो ऐड कर रहा है वो कितना ऐड कर रहा है, किसी स्टेप पे, इस स्टेप पे, इस स्टेप पे या इस स्टेप पे, बहुत ही कम, उससे कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, राइट। देखो इसके 3 स्टेप्स हैं, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का सिंपल मतलब यही है कि स्टेप्स ऑफ एडजेक्टिव वो कितना ऐड कर रहा है, कुछ ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इसके 3 टाइप्स है, पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट। ये इसकी फॉर्मेशन का एक मेथड है, इसकी फॉर्मेशन के डिफरेंट वेज हैं, जिस हम ये 3 स्टेप्स हैं या 3 डिग्रीज हम बना सकते हैं। जिस तरह गुड हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव से बेटर बना कंपैरेटिव, और यहाँ बना सुपरलेटिव, राइट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इसी तरह बनाते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें से हम लोग उनकी कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग इनको यूज़ किस तरह करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री जस्ट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, पॉजिटिव डिग्री हमें ये बताती है कि इस नाउन की ये क्वालिटी है, इस नाउन की ये क्वालिटी है। देखो अली इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, तो पॉजिटिव डिग्री हमें सिर्फ क्वालिटी बताएगी, जबकि कंपैरेटिव डिग्री क्या बताएगी, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं 2 बंदों की, एक बंदे को दूसरे बंदे से हम कंपेयर करते हैं, राइट। जिस तरह देखो अली इज बेटर देन असलम, अली इज बेटर देन
असलम। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तब हम जो डिग्री लगाएंगे वो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। कौन सी डिग्री लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और उसमें हम देन का इजाफा करेंगे ज़्यादा, राइट। जब भी कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हम जब दो बंदों के बीच में कंपैरिजन करें तब हम लगाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम देन का इजाफा लेंगे और देन यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री किसी दो बंदों के बीच में नहीं, पर बहुत दो से ज़्यादा बंदों, 2 और मोर देन 2 पर्सन के बीच में जब कंपेयर करें तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो, अली को हमने पहले असलम से कंपेयर किया, असलम और अली सिर्फ दो ही बंदे थे। अब अली को हम सारी क्लास के अंदर कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्लास के अंदर, सारी क्लास के अंदर अली को कंपेयर कर रहे हैं। तो अली इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अली इज़ द बेस्ट बॉय इन क्लास। अब अली को हमने पूरी सारी क्लास के अंदर कंपेयर किया, तो दो बंदों से ज़्यादा था, तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की। कौन सी? सुपरलेटिव। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो एक बात माइंड में रखना कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी कोई भी, तो हम उसके साथ द ज़रूर लगाएंगे। ये द यूज़ ऑफ आर्टिकल द है। द आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यूज़ करते हैं। तो जब भी इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करो तो आप लोगों को आर्टिकल द का यूज़ करना मस्ट है, राइट। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है, पेपर के अंदर आ सकता है कि यहाँ पे न दिया हो और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की हुई हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर द लगेगा और वो आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो अली इज़ द बेस्ट बॉय इन क्लास। उसके बाद और क्या गलती हो सकती है, राइट। भरत इज मोर क्लेवरर देन विनोद, भरत इज मोर क्लेवरर देन विनोद। यहाँ भी हमने क्या लगाया? सुपर कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, स्टेप नंबर 2, और उसके अंदर हमने क्लेवरर क्या लगाया? क्लेवरर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन हमने उसके साथ साथ और दूसरा समथिंग ऐड कर दिया। अब देखो, मोर यहाँ पे ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डबल कंपैरिजन हो गई, हम लोग ये गलत सेंटेंस हो जाएगा हमारा कभी भी, क्योंकि ये दो डबल हो गई। तो एक ही सिंगल लगाना है हमें। कंपेयर करेंगे तो क्लेवरर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे भरत इज क्लेवरर देन विनोद, नॉट भरत इज मोर क्लेवरर देन विनोद, राइट। तो ये हमारा गलत है, राइट। तो इस तरह यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे डबल कंपैरिजन नहीं करनी। उसके बाद क्या होता है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं वो जो देन के बजाय, यहाँ जो हमने देन लगाया, इंस्टेड ऑफ देन दे कैरी टू, सर्टेन कंपैरेटिव डिग्रीज टेक टू इंस्टेड ऑफ देन। हम देन नहीं यूज़ करते। कुछ इस तरह की डिग्रीज है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग ये जो देन यूज़ किया हमने कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, वो हम उधर देन नहीं यूज़ करते, उधर क्या यूज़ करते हैं? टू, उसके साथ टू यूज़ करें। अगर देन किया तो वो गलत हो जाएगा। जिस तरह मेहताब इज सीनियर और जूनियर टू अमृत, सीनियर और जूनियर, यहाँ पे ये जो सीनियर या जूनियर जो वर्ड है या हम लोग कहें कंपैरेटिव डिग्रीज है, ये अपने आप के साथ क्या कैरी करते हैं? टू। जब यूज़ करेंगे तब इसके साथ हम टू लगाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, राइट। इस तरह के वर्ड्स हैं जो अपने आप के साथ क्या कैरी करते हैं? टू इंस्टेड ऑफ देन, राइट। उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस है, इसको देखिएगा कि जीवत इज द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल फ्रेंड ऑफ माइन। जब एक सेंटेंस के अंदर दो सुपरलेटिव डिग्रीज यूज हुई हो और एक जो डिग्री है वो मोस्ट से बनी हुई हो, जिस तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस तरह की जब एक सेंटेंस हो, एक सेंटेंस के अंदर दो डिग्री सुपरलेटिव डिग्रीज यूज हुई हो और एक जो डिग्री है वो मोस्ट से बनी हुई हो, तो जो मोस्ट वाली होगी वो लास्ट में आएगी और जो दूसरी डिग्री होगी वो फर्स्ट में आएगी, राइट। और एक के आगे दे यूज़ करेंगे और उसके आगे द का कोई यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह जीवत इज द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल, बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड ऑफ माइन। तो इस तरह इसका भी केयर कीजिएगा। ये मोस्ट वाली जो होगी वो हम सेकंड में लाएंगे और जो
दूसरी होगी उसको फर्स्ट में लाएंगे। इसके अलावा कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, हम लोगों को उसकी सुपरलेटिव डिग्री या उसकी कंपैरेटिव कोई नहीं बनानी है, वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी सुपरलेटिव, राइट। जिस तरह यहाँ पे यूनिक है, परफेक्ट है, आइडियल है, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, ये ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज है। जब हम ही इज यूनिक पर्सन, ही इज यूनिक पर्सन, अब यहाँ पे कोई मोर यूनिक और कोई भी यहाँ पे मोस्ट यूनिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी हम लोगों को। दिस इज परफेक्ट पर्सन, ही इज परफेक्ट पर्सन, राइट। अब ही इज मोर परफेक्ट पर्सन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोर कंपैरेटिव है, जबकि परफेक्ट क्या है, परफेक्ट 100% परफेक्ट है, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव है। तो यहाँ पे ये जब यूज़ करेंगे तो इनके साथ हम लोग दूसरा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, लाइक मोर परफेक्ट और मोर आइडियल, वो यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए इस तरह के वर्ड, ये सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पीरियर, राइट, इस तरह के वर्ड अपने आप के साथ टू कैरी करते हैं। और हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग ये मोर या मोस्ट इस तरह का यूज़ नहीं करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द यूज़ करेंगे, राइट। जब हम कंपेयर करें दो के बीच में तब हम देन का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर।